Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर श्लोक क्रमांक 23। श्लोक इस प्रकार है। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यायशो मनोऽस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी यजुन् काले परम कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। मुच्यते मुच्यते कामकर्मभिः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. The personality of Godhead who appears in the mind of devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Purport. Yoga means concentration of the mind detached from all other subject matter, and actually such concentration is samadhi or 100% engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called yogi. Such a yogi, devotee of the Lord, engages himself 24 hours a daily in the service of the Lord, so that this whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in the ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out the orders, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord Himself, as it is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. The Lord calls such a rare devotee the best among all the yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness. And thus, by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life. It's a concomitant factors. In material existence, a living being has to endure the material condition of threefold miseries, life after life, according to his fruitive work. Such material life is produced by the material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desire of the living being, but they are applied in the right cause of the devotional service. This qualifies the desire to transfer to the spiritual sky. General Bhishmadev is referring to particular type of yoga called Bhakti Yoga, and who was fortunate enough to have Lord directly in the presence before he quitted his material body. He therefore desired that the Lord is stay before in his view in the following verse. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो हमने अब तक ये देखा था कि प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह के ऊपर हमने चर्चा किया था, और हमने ये देखा कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर महाराज के मन में कष्ट था कि
हमारे कारण इतने सारे लोगों का वध हो गया है, कितने सारे माताओं विधवा हो गई है, कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए। और भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया युधिष्ठिर महाराज को, पर वो माने नहीं। और हमने प्रभुपाद जी के पिछले तात्पर्य में यही देखा था कि भगवान की जो लीला है उसको समझना बहुत कठिन है। बाहर से तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, पर अंदर से भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित कर रहे हैं, जिससे युधिष्ठिर महाराज समझ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि भगवान की यही इच्छा थी कि भगवान भीष्म पितामह को ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे। तो आज के जो श्लोक है उसमें हम ये देखते हैं कि भक्त्यावेश मनो यस्मिन, कि जिस भक्ति द्वारा मन को आवेशित करके वाचा यन नाम कीर्तयन, और वाणी से उनके नाम का कीर्तन करके त्यजयन कलेवरम योगी, जब भगवान का भक्त इस संसार इस प्रकार शरीर त्यागता है तो मुच्यते काम कर्म भी, सकाम कर्म के द्वारा बंधन, जो बंधन उसे लगता है भगवान उससे मुक्त कर देते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ आज का जो श्लोक है, उसका मतलब है। तो भीष्म पितामह यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते छोड़ते अगर कोई अपने मन को भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण में लगा देता है, या शरीर छोड़ते छोड़ते अगर कोई अपने वाणी से भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कर देता है, तो मुच्यते काम कर्म भी, वह जीव समस्त कर्मफल या समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आज के अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। एक है कैसे भक्ति द्वारा भगवान भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, और दूसरा मृत्यु के समय एक भक्त का मनोभाव क्या होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में योगा के बारे में बताते हैं, योग के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्या मतलब है योग का। तो जो योग आज जो प्रचलित है पूरे विश्व में, जैसे कि पार्क में योग हो रहा है, मेडिटेशन सेंटर खुल रहे हैं, हर जगह अपने शरीर का कसरत कर रहे हैं सब लोग। सही मायने में आज देखे जाएंगे तो सभी जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शरीर के स्तर पर ये योग पद्धति कर रहे हैं। पर शास्त्र में क्या बता रहे कि योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना और भगवान का साक्षात्कार करना। तो हमने फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर श्लोक क्रमांक 28 में यही देखा था, वासुदेव परा वेद वासुदेव परामकः वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया, कि प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना है, और योग उनके ही साक्षात्कार के लिए है। और जो भक्ति योग है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, उसका मतलब क्या है, भक्ति योग द्वारा नियमों का पालन करते हुए हमें भगवान से जुड़ना है। तो अगर कोई सही मायने में योग करना चाहता है तो उसे जो अष्टांग योग जो है उसमें क्या चीज बताया है उसका पालन उनको करना पड़ेगा। जैसे कि अष्टांग योग में 8 प्रकार की चीजों का वर्णन किया हुआ है। एक तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो समाधि के स्तर पर जाने का जो 8 स्तर यहाँ पे बताए गए हैं, यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ना समाधि के ऊपर बता रहे हैं। पर आज के जो लोग हैं, आज के लोग जो संसार में आज के जो लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को तोड़ मोड़ कर और जैसे कि श्वास लेने का क्रिया कर रहे हैं, तो वो लोग वे सिर्फ आसन और प्राणायाम तक वो समाप्त हो जाता है। उनका जो है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम में सिर्फ रह जाता है। पर वो लोग क्या करते, यम और नियम का पालन नहीं करते, इसलिए वो समाधि तक नहीं पहुंच पाते। तो एक बार हिज ग्रेस जो अपने एक वरिष्ठ भक्त है, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप ये योग क्यों कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति ने ये ऐसा जवाब दिया कि मैंने मदिरापान बहुत किया हुआ था, इसके वजह से मेरा लिवर खराब हो गया है। तो कोई व्यक्ति ने मुझे कहा कि प्राणायाम करने से आपका लिवर सही हो जाएगा। तो प्रभु जी ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा कि अगर आपका लिवर सही हो जाता है तो आप फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से मदिरापान पीना स्टार्ट कर दूंगा। तो हम यहाँ पे यही देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो योग हो रहा है वो सिर्फ शरीर के स्तर पर ही हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें समाधि तक पहुंचना है तो हमें यम और नियम का पालन करना होगा। तो यम और नियम का मतलब क्या है, यम बोलेगा तो मतलब 4 चीजें जो करना है और 4 चीजें जो नहीं करना है। तो 4 चीजें क्या नहीं करना है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, मांसाहार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और पर स्त्री और पुरुष का संग नहीं करना।
और 4 चीजें हमें क्या करना है, साधु संग करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, भगवान का नाम का जप करना है और भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो लोग ये जो यम नियम का पालन करके ये जो नवविध भक्ति है उसको वो लोग उसमें वो व्यस्त हो जाता है। नवविध भक्ति भी हमने देखा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मा निवेदनम। तो जब भक्त ऐसे ये जो नवविध भक्ति का फॉलो करके जब अग्रसर होता है तो धीरे धीरे उसका एक ही उद्देश्य होता है कि ना कि वो किस तरह गुरु और गौरांग को प्रसन्न कर सके। तो जब वो इस स्थिति पे पहुंचता है तब जाके भक्त के मन में भगवान प्रकट होते हैं। पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक इम्पोर्टेंट ये भी बोलते हैं कि ऐसे जो भक्त और ऐसे जो महात्मा है वो बहुत दुर्लभ होते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी भगवत गीता का 7.19 का श्लोक कोट करते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अगर भगवान भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, कि सबके हृदय में ऑलरेडी भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर उन्हें प्रकट होने की क्यों जरूरत है। तो भगवान उसका ही आंसर भगवत गीता के 7.14 में देते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, कि भगवान भले ही वो सबके हृदय में है बट वो सबको प्रकट नहीं कराते। तो भीष्म पितामह यही कहते हैं कि भगवान भक्तों के मन में कैसे प्रकट होते हैं, एकाग्र भक्ति चिंतन पवित्र नाम के और कीर्तन के द्वारा भगवान भक्तों के मन में ही प्रकट होते हैं। तो देयर आर वन पास्ट टाइम्स, वहां पे एक बार न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी को एक माता जी पूछते हैं कि आप न्यूयॉर्क में आए हो तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रभुपाद जी को करते हैं वो माता जी। तो प्रभुपाद जी उस समय एक ही आंसर देते हैं कि भले ही मैं न्यूयॉर्क में हूँ पर मेरा जो मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ा, मेरे मन में और मेरे कॉन्शियसनेस में, मेरे चित्त और चेतना में सिर्फ और सिर्फ वृंदावन है, मैं सिर्फ गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो हम ये ऐसे ही भगवान भक्तों के मन में प्रकट होते हैं इस तरह से। तो ये लीला से हम ये देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट अगर हम देखने जाएंगे तो कि किस तरह भक्तों को ऐसे भक्तों का मृत्यु के समय क्या मनोभाव होता है, तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि जो भौतिकवादी जो लोग रहते हैं, अगर हम कभी उनसे मृत्यु के बारे में बात करने जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार अच्छा जीवन बिताओ ना, लिव यंग लिव फ्री, क्यों आप मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं इसके ऊपर, एक भजन है उनका एक, उसमें वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, संस्थाने शरीरे मम पढ़ाई रे बाई बे, पतंगा मतंगा तार बिबरहा करी बे, ये देहराए गति तारानुगा। तो इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इस शमशान में हमारा शरीर पड़ा रहेगा, अलग अलग कई कीड़ मकोड़े देखते हैं हमें और सोचते हैं आहा क्या मस्त भोजन आया हुआ है। तो इस शरीर का यही गति है। तो इस शरीर इस संसार में जो भी आया है उससे उस व्यक्ति को जाना ही है। पर कई बार भौतिकवादी ये भी कहते हैं कि आप लोग तो बहुत भक्ति कर रहे हो तो आप लोगों को क्या मृत्यु नहीं आएगी। तो इसके ऊपर 4th कैंटो में जब ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं तो उस परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक भक्त का मृत्यु और एक भौतिकवादी का मृत्यु में क्या फर्क है। तो प्रभुपाद जी ने एक वहां पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है बिल्ली का, कि जैसे एक बिल्ली उसके मुंह में जब बिल्ली का बच्चा रहता है और एक बिल्ली उसके मुंह में जब चूहे का बच्चा रहता है, तो उसका उदाहरण देते हैं कि जब बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा जब होता है तो उस समय उस बच्चे को संसार में सबसे सुरक्षित स्थान वही लगता है, पर जब एक चूहे का बच्चा जब बिल्ली के मुंह में रहता है तो सबसे असुरक्षित स्थान उसको वो लगता है। तो उसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं उस परपट में कि मृत्यु तो सबको आना है, पर जो भगवान की भक्ति करता है, वो जो भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान का जो शरण लिया हुआ है, उस व्यक्ति को मृत्यु एक निद्रा के समान है कि अभी इस स्थान पे मैं सोया हूँ, दूसरे स्थान पे मुझे जागना है। तो पर जो भौतिकवादी जो रहते हैं
उनको जो मृत्यु कैसा लगता है कि वो इतने आसक्ति से जुड़े हुए हैं और जैसे कि इस संसार में वो इतने जकड़ चुके हैं और जितना मोटी उनकी आसक्ति हो जाएगी वो जंजीर के समान, उसको तोड़ना उतना ही कठिन है। तो एक हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं देयर आर टू कॉन्सेप्ट, एक है आर्ट ऑफ डाइंग और एक दूसरा है आर्ट ऑफ लिविंग। अगर हम आर्ट ऑफ डाइंग मतलब अगर हम आर्ट ऑफ डाइंग सीखे कि हम किस तरह इस दुनिया से छोड़ना है, हमें हमारा देह को किस तरह इस दुनिया से छोड़ना है, तो अगर हम ये सीखे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह इस दुनिया में रहना है। तो भगवत गीता का यही सिद्धांत है कि यम यम वापिस मरण भावम, व्यक्ति शरीर त्यागते समय जिस तरह उनका भाव रहेगा और जिस तरह से वो स्मरण करेंगे उसी तरह उनको अगला शरीर उसी तरह उनको प्राप्त होगा। तो भक्त का भाव कैसा होता है मृत्यु के समय, तो भागवतम में 1.2.14 में इसके बारे में बताया गया है कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देह पूज्यस्य नित्यदा, कि भक्त का क्या भाव होता है कि वो एकाग्र चित्त से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन करना चाहता है। तो भक्त का यही इच्छा होता है कि वो अंत समय में भक्तों का संग उन्हें होना चाहिए, चारों ओर कीर्तन होना चाहिए, भगवान का नाम सुनते हुए प्रभुपाद जी का और गुरु महाराज का नाम स्मरण करते हुए वो इस संसार से वो अपना शरीर त्यागना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जाम। और हमें भागवतम में भी हम यही सीखते हैं कि किस तरह हम ये देह छोड़े। तो भागवतम के प्रारंभ में हम ये देखते हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में सुनते हैं कि उनको वो जो श्राप मिला हुआ था कि 7 दिन के बाद उनको वो जो तक्षक नाग है वो उसका मृत्यु हो जाएगी। और इसी के कारण सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को प्रवचन किया कि किस तरह वो इस शरीर को छोड़ना है उन्हें। और हम यही भागवतम में 4th कैंटो में ध्रुव महाराज के बारे में भी देखते हैं कि ध्रुव महाराज के समय स्वयं मृत्यु उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी और मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के उसने उस वैकुंठ धाम से जो आया हुआ विमान था उसके ऊपर जाके बैठ गए। और एक सेम पर्पट हम लोग 7th कैंटो में भी देख सकते हैं वृत्रासुर के बारे में कि वृत्रासुर जो थे उनका क्या मनोभाव था, उनका क्या स्थिति थी मृत्यु का समय। तो वो ये बोल रहे थे कि जिस प्रकार एक घोंसले में जब एक पक्षी जो है वो हमेशा देखती रहती है कि कब मेरी माँ आएगी और कब मुझे वो दाना लेके आएगी, तो उसके इंतजार में वो बच्चा क्या करता है, हमेशा चिंतन करता रहता है। और एक जो स्त्री जो रहती है वो हमेशा जब उसका जो पति जो घर से बाहर रहता है तो हमेशा यही सोचती रहती है, वो स्त्री यही सोचती रहती है कि कब मेरा पति घर पे लौट आएगा। और एक जो गाय का जो बछड़ा रहता है वो हमेशा ये देखता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी और कब मुझे वो दूध पिलाएगी। उसी तरह जो वृत्रासुर जो थे, जो भगवान के जो भक्त थे, उनका मन भी ऐसे थे कि भगवान कृष्ण का जो चरण कमल है वो मृत्यु के समय मुझे हमेशा वो याद रहे। तो आज का जो श्लोक है उसमें हम यही प्रभुपाद जी हमें यही 2 पॉइंट हमें सिखाते हैं कि किस तरह भक्ति के द्वारा भगवान किस तरह भक्तों के मन में प्रकट होते हैं और मृत्यु के समय एक भक्त का क्या मनोभाव होता है, इसके बारे में प्रभुपाद जी हमें आज के श्लोक में बता रहे हैं। एंड बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी ने अपने श्लोक में बताया हुआ है। तो हरे कृष्णा। तो आई विल स्टॉप हियर एंड कुछ इसके ऊपर अगर कुछ कमेंट करना है तो प्लीज वेलकम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सर्वोदय गिरधारी प्रभु, आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया और हमारी सबके यही मेन ज़रूरत है। हम लोग आए हैं यहाँ से और हम लोग को क्या करना चाहिए आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम लोग को सबको जाना ही है शरीर त्याग के, लेकिन ये शरीर त्यागने के वक्त हमारे मन में क्या विचार होने चाहिए, कैसे हमें इस शरीर को त्यागने का कला आनी चाहिए, वो आपने बहुत अच्छे से समझाया। और जब हम लोग ये सीखेंगे तो इस शरीर में जीना कैसे वो भी सीख जाएंगे। वो भी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा था आपका लेक्चर। हरे कृष्णा।
Yeah, thank हरे you, thank you, कृष्णा Mataji. सत्यनारायण हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु, सॉरी सर्वदेव प्रभु। अच्छा क्लास था बहुत। और आज का जो श्लोक है उसमें पितामह विष्णु यही बोल रहे हैं कि भगवान जो है भक्तों के मन में प्रेजेंट होते हैं, आते हैं वो, लेकिन कैसे? जो अटेंटिव डिवोशन करता है उसके। डिवोशन तो सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो अटेंटिव डिवोशन नहीं है। तो मतलब पितामह विष्णु हिंट दे रहे हैं कि हम लोग को भक्ति करनी है, लेकिन अटेंटिव। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ और सोच रहे हैं आरती करने के टाइम या भोग लगाने के टाइम। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे पितामह भीष्म जी का था। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और भगवान का नाम लेते समय जैसे ही बोल रहे हैं कि मेडिटेशन है बाय चैंटिंग द होली नेम। दोनों हम लोग तो मतलब मेडिटेशन तो नहीं करते हैं, हम लोग अपना जपा ही अपना मेडिटेशन है। तो हम लोग उसी टाइम हम लोग समाधि लगाते हैं। वी ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू चैंट विद फुल अटेंशन। तो वो हम लोग को अटेंटिवली करना चाहिए, और ऐसा जब करेंगे तब जाके हम लोग जब देह छोड़ेंगे तब भगवान जो है पितामह भीष्म की को जैसे उन्होंने प्रेजेंट होते हुए उन्हें रिलीज कर दिया, वैसे वो हमारे माइंड में प्रेजेंट होके हमको भी इस भौतिक जगत से निकाल लेंगे। तो इट इज़ अ वेरी नाइस श्लोका। थैंक यू सरदेव। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, yes, Satyaraj Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छे से क्लास दिया आपने, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और हर एक पॉइंट आपने कवर किया। मैं जस्ट एक पॉइंट उसमें ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी, कि जैसे हम लोग देखते हैं भगवद गीता 8.2 में, उसमें भी बताया प्रयाण काल के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एग्जाम तो सभी को देना है, और जैसे अभी हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु जी ने बताया कि जो भक्त एकदम फुल कंसंट्रेशन से, एकदम तन मन धन से भगवान की सेवा करेंगे, तो he will definitely go to back to Godhead। तो हम लोग इसका एक सही से एक एग्जांपल है राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर जो उसमें बताते हैं कि 8.2 अगर श्लोका देखेंगे उसमें लिखा है प्रयाण काले इन दिस वर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज वॉट एवर वी डू इन दिस लाइफ विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। एंड फिर आगे लिखा है कि कुलशेखर, राजा कुलशेखर है, वो बोलते हैं कि भगवान अभी मुझे मृत्यु दो, क्योंकि मैं अभी सही समय है, क्योंकि मैं अभी आपके ऊपर मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मृत्यु के समय मेरा शरीर का क्या व्याधि रहेगा, तो मेरा मन वो शरीर के व्याधि में ही रहेगा। तो मुझे अभी जो है मेरा ये जो स्वान है तो अभी ले लो। तो हम लोग देख सकते हैं कि राजा कुलशेखर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ने 8.2 में दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज बोलते हैं कि एग्जाम सभी को देना है, लेकिन कौन लोग इतने सीरियस है। तो जैसे ही दामोदर देश में उनका क्लास था, तो मुझे अभी भी याद है महाराज लेक्चर दे रहे थे, और महाराज एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जब भी इसके बारे में पॉइंट बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि जैसे हम लोग अपने लाइफ में इतने सारे एग्जाम देते हैं तो हाउ वी आर कॉशियस, लेकिन ये जो फाइनल एग्जाम है इसके लिए कोई कॉशियस ही नहीं है। सब लोग मटेरियल दुनिया में भाग रहे, दौड़ रहे, इसको ये कमाने का है उसको, लेकिन कौन कॉशियस है इसके लिए। तो वो मुझे याद आ गया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया प्रभु। तो थैंक्स वंस अगेन सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। यस जीवपान प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सर्वदेव प्रभु जी, आपने इतना अच्छा तरीके से समझाया प्रभु, और इसमें आपने बहुत सारा जो ये कम टाइम में आपने बहुत कुछ इसमें बताया। तो इसमें प्रभु जी ये जो आपने योग के बारे में बताया था, कि सिर्फ जो लोग अभी करते हैं वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे करते हैं,
और उनका जो योग और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम तक ही होता है, बाद में यम और नियम के आगे वो जाते नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपने तुलना हमें समझाया। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आपने प्रवचन में बहुत सारे रेफरेंसेस भी लिए प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में से, फिर बाद में आपने भागवतम में से भी, ध्रुव महाराज के प्रसंग में से भी आपने बताया कि वो बिल्ली का और वो उसके बच्चे का और वो चूहे का जो एग्जाम्पल था, वो भी बहुत अच्छा, मतलब ऐसा समझ में आता है कि कोई भक्त होता है तो उसके लिए भगवान किस तरह काल स्वरूप में उसके लिए वो डेंजर नहीं होते, उसके लिए वो एक, जैसे आपने इतना ये भी अच्छा बताया कि वो एक निद्रा अवस्था में जाता है और फिर दूसरी जगह उठता है। तो थैंक यू प्रभु जी। और इसमें आपने ये वृत्रासुर जी का चतुर्श्लोकी में से भी जो आपने इतना अच्छा समझाया कि अंत समय में कैसा हमारा भगवान के प्रति ये होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रेफरेंसेस आपने लेके समझाया। और अंत में जैसे डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी जो आपने भजन गा के उसमें से भी जो बॉडी के लिए इतना आसक्त होते हैं तो बॉडी का क्या रिजल्ट होता है लास्ट में, वो भी आपने बताया। तो थैंक यू प्रभु जी, इतने कम टाइम में आपने इतना सारा रेफरेंसेस लेके इतना अच्छा समझाया उसके लिए। और जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने भी बताया कि हम लोग आर्ट ऑफ डाइंग, जो आपने परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का भी रेफरेंस लेके बताया कि उन्होंने आर्ट ऑफ डाइंग हम सीखेंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग भी हो जाएगा साथ में। तो थैंक यू प्रभु, इतना अच्छा आपने समझा इसके लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु जी। यस व्रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपने दिए। वो जैसे अभी सत्यराज प्रभु ने बोला उसी तरह मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मतलब ऐसा ही कनेक्टेड, जैसे कि हम कहीं भी जाना होता है तो शॉपिंग करते और पैकिंग करते हैं, तो तब हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मेरी 22 तारीख की टिकट है, मुझे मेरी 25 की टिकट है, मुझे शॉपिंग करनी है, पैकिंग करनी है। हम वो मतलब याद रखते हैं, लेकिन हम वो याद नहीं रखते हैं कि हमें ये दुखालय से निकल के भक्ति हमारी इतनी बढ़ानी है कि हम कृष्णा के पास जाए गोलोक वृंदावन में। तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट बोलना था। और दूसरा ये कि प्रभु आपने वाकई में जो एग्जाम्पल दिए है ना, वैसे बोलते ना कि मैंने कल भी जैसे बोला था कि भक्ति में अगर हम आगे बढ़ने के लिए जो ये एग्जाम्पल सुनते हैं ना, उससे हमारा ज्यादा मतलब मोटिव, हम ज्यादा हमारा भाव बढ़ता है। मतलब कोई मटेरियल कोई एग्जाम्पल हम देते हैं तो आपने जो बिल्ली वाला और चूहे वाला जो एग्जाम्पल बोला, और दूसरा जो मतलब पत्नी होती है वो वेट करती है, बच्चा वेट करता है अपनी माँ का, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल। आई मीन कोई बात हमें पता होती है, लेकिन किसी का जो बोलने का जो वे होता है ना, जो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, तो आपने इतना प्यार से और इतने अच्छे से बोल रहे थे, तो प्रभु रियली बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ यस, हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी माता जी बोल रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई। जो भी हम भक्त होते हैं, उनके बच्चे जब नरसिम्हा भगवान की जब फर्स्ट टाइम भी मूर्ति देखते हैं, डेटीज देखते हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं लगता है, या जो भी भक्त है। लेकिन जो भी बाहर वाले लोग आते हैं, वो जब नरसिम्हा भगवान का देखते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है। इससे समझ सकते हैं हम लोग। मेरे दरवाजे पे भी वो नरसिम्हा भगवान का जो आता है दरवाजे के ऊपर लगाने का, वो मैंने कितनी बार लगाया, लेकिन जो आजू बाजू वाले हैं वो लोग डरते थे ये क्या है, और हमेशा चुरा के लेके जाते थे, रहता ही नहीं था। मैंने 10 बार वो लगाया है, फिर जाके रुका, फिर उसके लिए मैंने अलग सा फिटिंग किया। और फिर एक दो लोग मुझे बोले भी ये क्या डेंजर ऐसा लगाया। नहीं, डेंजर नहीं, ये हमारे भगवान है। तो इससे समझ में आता है जब हम लोग अभी जब भगवान के जो होते हैं भक्त, उन्हें वो कितने अच्छे लगते हैं। अपने प्रोटेक्शन के लिए है भगवान नरसिम्हा बोले तो हाँ, ये हमारी रक्षा करने वाले। बच्चों के मन में भी यही भाव आता है। और वही जो अभक्त है, उन्हें वो कितने डरावने लगते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। बोलते इतने आंखें
उनकी कैसी है, दांत दिखते हैं ऐसे, तो वही बताना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया माता जी आपने। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और एक चीज मुझे ऐड करना था। अगर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मृत्यु के समय बहुत कठिनाई होती है, तो मतलब जैसे थोड़े टाइम पहले हम लोग ने देखा 8.2 श्लोका में कि उसमें ये प्रयाण काल के समय बहुत सारी शरीर की व्याधि हो जाती है, तो शरीर छोड़ नहीं सकता। लेकिन भगवान हमें भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि अगर मेरा भक्त रहेगा तो मैं खुद आऊंगा। तो भगवान का प्रॉमिस है, तो लाइक भगवान हम भक्तों के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, तो भगवान श्योर आते हैं। तो हम लोग को इतना सीरियसनेस से हम लोग को भक्ति करना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक पॉइंट, आप जैसे कि प्रयाण का आपने बताया था प्रभु, तो कल मैं वो लेक्चर में सुन रहा था कि जब हम कहीं मतलब किधर अगर छुट्टियों पे जाते हैं, तो अगर जब ज्यादा बैगेज रहता है हमारे हाथ में, तो वो कैरी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस जब छुट्टियों में वगैरह जाते हैं। उसी तरह यहाँ से जब प्रयाण करते हैं हम, तो बोलते हैं कि ना ज्यादा आसक्ति रहेगा हाथ में, तो उसको कैरी करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है जाने के समय। तो उसके लिए सब आसक्ति यहीं पे छोड़ना बहुत जरूरी है बोलते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु दंड प्रणाम, सरदेव गिरिधर प्रभु दंड प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। तो प्रभु बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु। और जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने भी कहा कि वी हैव टू बी अटेंटिव। तो जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, अगर हम अटेंटिव नहीं है तो कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी तरह मतलब एक भक्ति के मार्ग में भी हम लोग चल रहे हैं, अगर वी आर नॉट अटेंटिव और अगर अपराध वगैरह हो जाएगा, तो फिर जो कुछ भी मतलब हम लोग कर रहे हैं उसका कोई ये नहीं रहेगा मतलब। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। और उसमें और एक जस्ट पॉइंट मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी जब कोई नया गाड़ी चलाना सीखता है, तो उसके बाजू में वो इंस्ट्रक्टर रहता है, तो भले वो थोड़ा बहुत इधर उधर गलती करे तो साइड में से वो कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से वी हैव टू बी ऑलवेज अंडर, मतलब हमको हमेशा एक नवसिखिया भक्त जैसे ही अपना क्या कहते हैं, वी हैव टू फॉलो डिवोशन सर्विस एज अ न्यू डिवोटी। और हमेशा हमारे साइड में हमारे सीनियर डिवोटी का आश्रय में ही रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं पक्का हो चुका हूँ। तो जैसे वो नया ड्राइवर साइड में अगर उसका इंस्ट्रक्टर बैठा रहता है, तो इवन वो कुछ गलती करे तो साइड से एकदम वो कंट्रोल कर लेता है। तो उसी तरह से अगर हम हमेशा भक्तों के आश्रय में रहेंगे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हम चूक भी जाए, देन हमारे जो गुरु है, हमारे जो सीनियर डिवोटी है, वो हमको दे विल प्रोटेक्ट अस, दे विल गाइड अस। तो उसी तरह से थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज माधव प्रभु, बहुत अच्छा अपने पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया प्रभु जी। वो जो ड्राइव इसका था ना, ड्राइवर का, इट वाज वेरी नाइस प्रभु जी। थैंक यू सो मच सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। Namaste. When Hare. you said driver, I just got a thought. When I used to go for inspection for a train, the engine driver, there's one co-pilot also along with him. For everything, they keep on giving the instruction. When he say signal red, the one who is driving also has to repeat that, so that there's more concentration while they are driving and no wavering of mind anywhere. So we really need, so when we start chanting the God's name now, then only we will remember it at the end of our life. Otherwise, suddenly you can't remember the name of God when you are in such a pain. So we should constantly be in the same service to Lord. Thank you Nandini Mataji, thank you so much Mataji for adding valuable point Mataji. Hare Krishna. Thank you so much once again Nandini Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी माता जी बोल रहे थे कि नंदिनी माता जी बोल रहे थे कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग का गुरु का इंस्ट्रक्शन हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, और शिला प्रभुपाद जी का। सो
थैंक यू नंदिनी माता जी, थैंक यू सूरत माधव प्रभु, बहुत अच्छे पॉइंट्स अपने बताए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, बहुत अच्छा क्लास थे। स्पेशली तो मुझे वही आपने जो एग्जांपल दिया आर्ट ऑफ लिविंग ऑन आर्ट ऑफ डाइंग, तो हम लोग तो आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बहुत कुछ करता है, लेकिन आर्ट ऑफ जो डाइंग उसके ऊपर क्या करता है हम लोग। तो ये जो आपने एग्जांपल दिया बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा क्लास था। पूरे पॉइंट अपने मतलब वन बाय वन बहुत समझा प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की।